اور پھر ایک سرمن ہے پطرس کا ہمارے سامنے. آج ہمارا ٹیکسٹ ہے 12ویں آیت سے لے کر آخری آیت تک اس چیپٹر کی، لیکن ہم 11ویں آیت سے پڑھیں گے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے. پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چھلتا پھرتا کر دیا؟ ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پیلاطس نے اس سے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا. تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا. اس کے ہم گواہ ہیں. اسی کے نام سے، اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو. بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی. اور اب آئے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس سے اسی طرح پوری کی. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا کہ وہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کیا جائے گا. بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے. تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. So, second sermon. The second sermon of Peter. لیکن اگر آپ دونوں سرمنز کو ساتھ ساتھ پڑھیں، جو چیپٹر 2 کا سرمن ہے اور چیپٹر 3 کے سرمن ہے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ایک ہی ہے، سٹرکچر بالکل ایک ہی جیسا. ٹھیک ہے؟ ہوا کیا تھا؟ ایک واقعہ ہوا چیپٹر 2 کے شروع میں. لوگوں نے زور کسی آندھی کا سناٹا سنا، آواز آئی، باقاعدہ آواز آئی، اور آگ کے سے شعلہ کی جو زبانیں ہیں وہ لوگوں پر ٹھہرتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر رسول غیر زبان بولنے لگے. تو it was enough to gather people. یہاں کیا ہوا؟ خدا نے ایک لنگڑے کو، لولے کو، اپاہج کو شفا دے دی. اب دیکھیں، کچھ لوگ جو کہ باقاعدہ سے ہیکل میں آتے ہوں گے، باقاعدگی سے، کیونکہ ایک صبح کی قربانی ہوتی تھی اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی، اور ایک شام کی قربانی ہوتی تھی اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی. بہت سارے لوگ صبح بھی آئے ہوں گے اور انہوں نے اس شخص کو ہیکل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا. سو ان their recent memories وہ شخص اپاہج ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا.
मे बी इन द डिस्टेंट मेमोरी, जब से वो हैकल में आते जाते रहे होंगे, वो शख्स वहीं बैठा और भीख मांगता। आज क्या होगा? वो शिफा हो गई, वो तो चल फिर रहा है, वो तो रसूलों के पीछे भाग रहा है। अगेन उस वाक्य की वजह से एक क्राउड इकट्ठा हो गया। पतरस ने मौका गनीमत जाना, वहां पर भी और यहां पर भी तहरीक पीछे रूल कुछ की है। और फिर सरमन अगर आप देखें तो वेरी स्ट्रक्चर्ड सरमन है, और ये खुलासा है जो हमारे लिए लिखा गया। ये पूरा सरमन नहीं है, ये सिर्फ उसका जिस्ट है। वो कहता क्या है, पहले करता क्या है? पहले वो इवेंट को एक्सप्लेन करता है। चैप्टर 2 में उसने पुराने ऐदनामे की आयात कोट की और उसने कहा जो कुछ तुम्हारे लिए नबियों ने कहा था, खुदा ने नबियों के वसीले से कहा था, वो आज पूरा हो गया। उसने कहा था कि योएल नबी की आयत के मैं हर फर्द बशर पर अपनी रुल कुद्स को डालूंगा। इट्स डन। यहां क्या है? ये किसने किया? मैंने नहीं किया, यूहन्ना ने नहीं किया। हमारी दीनदारी नहीं है, हमारी कोई अच्छाई नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई महारत नहीं है। गॉड हील्ड हिम। तो पहले वो वजह बयान करता है, क्यों आप लोग सब क्यों हैरान। फिर वजह बताने के बाद ही गोज डायरेक्टली टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। वो उनको कहता है तुमने, है ना, तुमने मरवा डाल। उधर भी कहा, यहां पर भी कह दिया। सो ही ट्राइज टू इन्वोक गिल्ट इन देम कि तुम्हारा कसूर है, तुमने किया है ना, तुमने भी, तुम्हारे सरदारों ने भी। और फिर देन ही गोज ऑन टू द ग्रेस ऑफ गॉड कि देयर इज अ वे आउट, है ना। एवरीथिंग इज नॉट फिनिश्ड, यू आर नॉट डूम्ड, देयर इज अ वे आउट। और निकलने का रास्ता क्या है? रिपेंट, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, और खुदा तुम्हें दोबारा से बहाल कर देगा। तो पैटर्न बिल्कुल सही है। और आज के सरमन में भी हम देखेंगे कि इट्स जीसस फर्स्ट एंड जीसस लास्ट। वो हटता नहीं है मसीह से। इट्स वेरी वेरी क्रिस्टोसेंट्रिक एंड दैट इज हाउ ऑल प्रीचिंग शुड बी। लैंगम में भी हम यही सिखाते हैं ना, चाहे आप पुराने ऐदनामे से प्रीच कर रहे हैं, चाहे नए ऐदनामे से प्रीच कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। आपको मसीह तक लेकर आना है लोगों को। चाहे आप दाऊद की जिंदगी से प्रीच कर रहे हैं, अब्राहम की जिंदगी से प्रीच कर रहे हैं, एवरीथिंग हैज टू कम टू दैट सेंट्रल पॉइंट। यानी मरकज क्या होना चाहिए हर अच्छी प्रीचिंग का? इट शुड ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। पहला सरमन, दूसरा सरमन, स्टिफनेस का सरमन, पौलुस का सरमन, सब क्या है? कहां लेकर जा रहे हैं? मसीह तक। और ठीक है ना, रोमन कैथोलिक चर्च में क्या कहा जाता है कि जो प्रीस्टहुड है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ पीटर, है ना। ये पतरस की नस्ल है एक तरह से, जो पतरस के काम को आगे लेके जा रही है। बट दैट्स नॉट ट्रू। एवरी प्रीचर दैट प्रीचेस क्राइस्ट इज द सन ऑफ पीटर, है ना, सन और डॉटर, है ना। जो भी मसीह तक लेकर आता है लोगों को, जो भी अच्छा सरमन लोगों को मसीह तक लेके आता है, वो इसी सरमन की कंटिन्यूएशन। अब पतरस के पास नया ऐदनामा नहीं था, पौलुस के पास नया ऐदनामा नहीं था। हाँ, शायद मरकज की इंजील तब तक में भी लिखी जा चुकी थी, बट इट वॉज नॉट वेरी कॉमन। तो उनके पास क्या था प्रीच करने के लिए?
पुराना अहदनामा ना, वो पुराने अहदनामे से शुरू करके यसु पर लाकर बात को खत्म कर देते, ठीक है। एंड दैट टू वी सी हियर। सो व्हाट हैपेंड, अब वो बंदा इतना एक्साइटेड है, वो भागा पीछे पीछे, है ना, जाके चप्पा डाल लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड सडनली द होल पीपल, जो इवनिंग की सेक्रीफाइस अटेंड करने के लिए वहां आए थे दुआ में, और चर्च भी वहीं मिला करता था ना? तो जहां यहूदियों की इबादत अंदर हो रही होती थी, बाहर सुलेमान के बरामदे में, सोलोमन्स पोर्टिको में क्या हो रहा होता था, चर्च लगा हुआ होता था। सो वो भागा आया तो लोग सारे जमा हो गए उसको चलता देखकर, भागता देखकर। एंड दैट गेव द अपॉर्चुनिटी टू पीटर, उसको मौका मिल गया कि वो अब बात करे। और पहला हिस्सा जो है, अ फ्यू वर्सेस हियर, वहां पर हमें गिल्ट नजर आता। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, आए इस्राएलियों। सो वेरी क्लियर कि उसका ऑडियंस, उसकी ऑडियंस कौन है, ठीक है, बनी इसराइल। ऑल्दो जहां पर वो खड़े हैं वहां पर जेंटाइल्स भी आ सकते हैं, वो है ना, वो जी, वो गैर कौमों का सहन है ना, दालान है, इट्स द जेंटाइल्स कोर्ट, दे कैन ऑल्सो कम, बट ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग टू द जूस, इजराइलाइट्स। इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। नॉट अस। वो किसी ने कहा था कि एक ईमानदार की जिंदगी जो है ना, वो एक रिफ्लेक्टर की तरह होती है, रिफ्लेक्टर एट 45 डिग्रीज, ठीक है। क्या होगा जब इधर से प्रेज आएगी, कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होके सीधी ऊपर। अगर 45 के डिग्री पे कोई शीशा पड़ा हुआ है यूं, तो जो भी डायरेक्टली इधर से आएगा वो ऊपर जाएगा। वो कह रहे हैं, नो, डोंट लुक एट अस, वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, हमने नहीं किया ये, राइट। यहां क्या होता है, सीने चौड़े हो जाते हैं ना लोगों के, तो वो एक है मैं कड्डी बदरू तो यहां पर लोग फौरन क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को टोटली डिस्क्रेडिट कर रहा है, अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। नो, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं कर सकते, क्योंकि शिफा देना सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम है, इंसान का नहीं है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया, जिसने तुम्हें पकड़वा दिया, और जब पहले तो उसने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। फर्स्ट ही डिस्क्रेडिट्स हिमसेल्फ कि मैंने नहीं किया, यूहन्ना ने नहीं किया, हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम किसी को शिफा दे सके। किसने शिफा दी है? अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा, ठीक है। दिस वॉज द ओल्ड टेस्टामेंट वे ऑफ रिफरिंग टू जेहोवा, द गॉड ऑफ एब्राहम एंड ऑफ आइजक एंड ऑफ जेकब, ठीक है। ये क्या था? तरीका था, खुदा को मुखातिब करने का तरीका था। आज भी बहुत सारे लोग दुआ में इस्तेमाल करते हैं इसी टर्मिनोलॉजी को, बट इट मीन्स गॉड, ठीक है, जेहोवा, यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया। नाउ देयर इज अ ट्रिक हियर। वो क्या कह रहा है? खादिम, है ना, खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया, और जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है पायस, PAIS, जो ग्रीक वर्ड है वहां पर,
उसका मतलब नौकर भी है, खादिम भी है, लेकिन उसका मतलब बेटा भी है. Although we translate it as खादिम, लेकिन उसका एक मतलब, उसी लफ्ज का एक मतलब बेटा भी है. ठीक है. तो वो चूंकि खर खाते थे इस वर्ड से, खुदा का बेटा, यीशु अपने आप को खुदा का बेटा, तो उसने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया कि जिसके दोनों मतलब हो सकते हैं. खादिम भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है. तो प्रोबेबली ही मेंट बेटा. खुदा ने अपने बेटे यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने अब आ गई गिल्ट वाले लिहाज नहीं करता पता. एंड इट्स द होली स्पिरिट स्पीकिंग थ्रू हिम. और होली स्पिरिट का एक काम यह भी है कि वो कंडेम करता है. तो क्या कह रहा है वो? तुमने उसे पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया. तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए. तो गुड फ्राइडे का पूरा वाकया उसने बयान कर दिया कि तुम भी थे उनमें जो चीख रहे थे कि बरअब्बा को छोड़ दे. वो कंट्रास्ट मैंने आपको बताया था ना. एक तरफ वो कहते थे यीशु है जो अपने आप को खुदा का बेटा कहला, और दूसरी तरफ कौन है? बरअब्बा, अपने बाप का बेटा. ठीक है. तो वो भी अपने बाप का बेटा है, वो भी अपने बाप का बेटा. बट दे चोज द रॉन्ग वन, द रॉन्ग सन. ठीक है. दे चोज द रॉन्ग सन. बर का मतलब है बेटा ना, बार. ठीक है जी. तो अच्छा, अभी मैं आता हूं उसकी तरफ जो यीशु के लिए वो टाइटल्स इस्तेमाल कर रहा है, उनकी तरफ हम आते हैं. लेकिन पहले वो क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू कंडेम देम. इल्जाम लगा रहा है, तुमने ये किया ना. पहले तो उसे नहीं मारना चाहता था उसको, तुमने उसको मजबूर किया. तो हिस्ट्री में तो यह लिखा गया जाएगा कि रोमियो ने उसे सलीब दी, बट रोमियो ने नहीं दी, तुमने उसको मसलूब करवाया. मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, इसके हम गवाह. अच्छा देखें टाइटल वो क्या इस्तेमाल कर रहा है यीशु के लिए. सबसे पहले उसने खादिम का लफ्ज इस्तेमाल किया, और जिसका मैंने आपको कहा था. अच्छा, खादिम भी, इसमें भी नुआंस है. वो जो यसाया 53 वाला खादिम, राइट. बट इट ऑल पॉइंटेड टूवर्ड्स जीसस. वो जो 4 सर्वेंट सॉन्ग्स हमने सीखे थे ना एक जमाने में आइज़ाया से, तो लफ्ज तो वहां खादिम है, लेकिन इशारा किसकी तरफ था? यीशु की तरफ. ठीक है. तो उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जिसको तुमने पकड़वाया है वो कोई आम शख्स नहीं था. ही वॉज द सर्वेंट. अच्छा जी, तुमने उस कुद्दूस और रास्तबाज का इनकार किया. यहूदी जान से मारने पर तैयार हो जाता अगर किसी और को उसके सामने कदूस या रास्तबाज, उनके नजदीक एक ही था. कदूस कौन है? खुदा. और रास्तबाज कौन है? खुदा. याद है वो एक शख्स यीशु के पास आया, उसने क्या कहा? ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं. यीशु ने कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है, रास्तबाज तो एक ही है. तो या तो मुझे मान ले कि मैं खुदा हूं, फिर मुझे रास्तबाज कह ले, राइट. अदरवाइज डोंट कॉल मी, क्योंकि
यहूदियों के नजदीक रास्तबाज, क्योंकि पुराने अहदनामे में लिखा है कोई एक भी रास्तबाज नहीं, कोई भी नहीं, है ना, खुदा की नजर में। और सिर्फ खुदा रास्तबाज है, सिर्फ खुदा पाक है ना। और उसके लिए फरिश्तों ने भी क्या कहा? कद्दूस कद्दूस कद्दूस। यानी वो इतना पाक है कि एक दफा में शायद पूरा नहीं होती, उसका हक अदा नहीं होता उसके पाक होने का, है? वो नहीं। तो क्या कह रहे? वो बेटा है ना। मैंने कहा खादिम और बेटे के लिए ग्रीक वर्ड एक ही है। वो बेटा है, वो कद्दूस है, वो रास्तबाज है। तो हर चीज किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? कि वो खुदा है ना। तो वो ही इज नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स हियर। चाहे किसी को गुस्सा चढ़ता है, कुछ भी होता है, वो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा है। और फिर 15वीं आयत में कहता है मगर जिंदगी के मालिक। अगेन, अच्छा, बड़ा पैराडॉक्स लगता है ना कि वो जिंदगी का मालिक है और तुमने उसको कत्ल कर दिया, तो कैसा जिंदगी का मालिक है वो? जी, तो जिंदगी के मालिक फिर खुदा की तरफ, क्योंकि जिंदगी कोई और नहीं दे सकता। तो वो बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है, कहीं कहीं वो ढकी छुपी बात नहीं कर रहा है। ही इज रिफरिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, और वहां से जो जो चीजें खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल की हैं, उन चीजों को वो यहां पर इस्तेमाल करता है। और कह रहा है कि किसने ठीक किया इस शख्स को? पहले उसने कह दिया हमने नहीं किया, अब वो कह रहा है उसी ने जिसको तुमने मरवा दिया, उसी ने, उसी के नाम ने, उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है, उस शख्स को मजबूत किया। ठीक है? सो इट्स नॉट अस, इट्स जीसस। ठीक है? और फिर एक प्रीचर का काम क्या होता है? एक अच्छे प्रीचर का काम क्या होता है? कि वो साइड लाइन हो जाए और लोगों को यीशु नजर आ जाए। कहा हमने नहीं किया, हम में ना कुदरत है, ना इतनी कोई दीनदारी है हमारे अंदर कि हम ऐसा कर सके। इट्स थ्रू, इट्स जीसस। ठीक है? खुदा ने किया, यीशु के वसीले से किया। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दे। तो उसने क्या किया? दो काम किए यहां पर। एक तो वजह बता दी, जिस वजह से लोग हैरान थे ना, उसकी वजह बयान कर दी कि ये वजह है कि ये हमने नहीं किया, यीशु ने किया। ठीक है? और फिर गिल्ट उनके अंदर। अब थोड़ा सा और आगे चला गया ना, उसने कहा पहला तू तो छोड़ देना चाहता था, तुमने खप डाली, तुमने शोर मचाया कि नहीं इसको मसलूब कर और बर अब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। तो क्या हुआ? अब जैसे पहले था कि लोग परेशान हो गए सुन के ये बातें, क्योंकि ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ है ना। अब परेशान है, लेकिन अब मरहम रखने का टाइम आ गया है ना। अब खुदा के फजल की तरफ वो चलता है। और अब आए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुम, अच्छा पहले क्या कह रहे हैं उनको? इसराइलियों, लाइक अपने और उनके दरमियान दीवार लाइन खींच रहा है वो। बट नाउ ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम इन। इसलिए अब उनको क्या कह रहे हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो इट्स मोर ऑफ अ, इफ देयर वर एनी लेडीज देयर एज वेल, तो उनको भी मुखातिब करके वो कह रहा है मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया। यू एक्टेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, कि तुमने पहचाना नहीं उसको। ठीक है? और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया।
ٹھیک ہے. تو زیادہ ذمہ داری کس کی تھی؟ سرداروں کی، جنہوں نے تمہیں لیڈ کیا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. بٹ ایون دے ڈڈ ناٹ نو. مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی. ٹھیک ہے. پہلے سرمن میں بھی پطرس نے کیا کہا تھا؟ یہ سب کچھ خدا کے علم سابق کے مطابق ہوا. اٹ واز دا پلان آف گاڈ. لیکن تم ٹریپ ہو گئے، بیچ میں پھنس گئے. یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ اس نے مرنا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. بس ناؤ دا وے آؤٹ ہے نا، انویٹیشن ہے. اب وہاں تو لوگوں نے پوچھ لیا تھا نا، اب ہم کیا کریں. جب دلوں پہ چوٹ لگی تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کریں ہم، کیا ہر دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے لیے اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی پطرس نے کہا تھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ توبہ کرو اور رجوع لاؤ. دیٹ از دی وے آؤٹ. کہ جس کو ریجیکٹ کیا تھا اب اس کے پاس واپس آ جاؤ. اور ریپینٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ٹیک اے یو ٹرن، واپس آ جاؤ. جسے بھاگے تھے اس کی طرف اب واپس آ جاؤ اور رجوع لاؤ. دیٹ از دا وے آؤٹ. یو ہیو ٹو کنفیس. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ کنفیشن کیا جائے. یو ہیو ٹو کنفیس اور پھر تمہیں واپس آنا ہے تاکہ تمہارے گناہ. اچھا اب اس کی برکت کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن اف یو کنفیس اینڈ ریٹرن، ہے نا. توبہ کرو گے، ریپینٹ کرو گے اور واپس آؤ گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ کیا ملے گا؟ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ، 19ویں آیت میں، تمہارے گناہ مٹائے جائیں. وائپنگ آؤٹ آف سن. کیا فرق ہے پرانے عہد میں، اولڈ کورننٹ اور نیو کورننٹ میں؟ پرانے عہد میں اور نئے عہد میں بیسک فرق کیا؟ نہیں، توبہ کی تھی. وہ تو قربانی کر کے اپنے گناہوں کو بخشتے تھے نا. بس ہے. کسی نے یہاں کہا تھا کہ اس میں گناہ کی معافی نہیں تھی پرانے عہد میں. ٹھیک ہے. وہاں پر گناہ صرف ڈھانکے جاتے تھے. جی ایگزیکٹلی. اور دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے. So the old covenant did not take the sin away. اور خدا نے جب کہا تھا نا میں نیا عہد باندھوں گا، جرمیہ 31، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کی بد کرداری ان پر نہیں لگاؤں گا، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. پرانے عہد میں کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا جس سے گناہوں کی معافی، forgiveness of sins حاصل ہو جائے. یس وہ انڈر دا کارپیٹ چلے جاتے، ڈھکے جاتے تھے. It is only through the new covenant that our sins are forgiven. So, yes, exactly. The new, that's why he is saying that. یہ دیکھیں نا. Let's go to Jeremiah 31.
31 राइट। क्या कह रहा है खुदा? देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। So this is something new, a new covenant, ठीक है? उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और फिर अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को यह कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। और ये जो आखिरी लाइन है ना, आखिरी आयत, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट कवनेंट, द ओल्ड कवनेंट एंड द न्यू कवनेंट। क्योंकि कफारा हमारा यस्सु की सूरत में मुकम्मल हो। वहां पर क्या होता था? यू सिंड, आपने सैक्रिफाइस की, यू सिंड अगेन, यू हैड टू सैक्रिफाइस, राइट? हाँ, वो एक गुनाह को दूर करना, ठीक है? वो भी यानी ढक गया गुनाह। यस, सो एंड रिमेंबर ही इज टॉकिंग टू इजराइलाइट्स, और बड़ा क्लियरली उनको कह रहा है कि नाउ इफ यू कम टू जीसस, रुजू लाओ, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? गुनाह माफ, मिटा दिए जाए, माफी है। और दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू कवनेंट, सील्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर इसी आयत में कहता है, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। दैट इज द सेकेंड ब्लेसिंग, रिफ्रेशिंग टाइम्स, है ना, बहाल किए जाएं लोग। आगे 22वीं आयत में भी वो यही बात कर रहा है। चुनाचे मूसा ने कहा, नहीं सॉरी, हाँ जी 21वीं आयत में, सॉरी, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीजें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया। सो व्हाट इज इट? रेस्टोरेशन, रिफ्रेशिंग टाइम। अब ये कब होगा? या ये हो चुका है? यस, यस्सु के आने से, पहली आमद से क्या हुआ? inaugurated, the kingdom of God was inaugurated, although it's inside us. अभी वो किंगडम कहां है? वो हमारे अंदर है। लेकिन इसकी तीसरी ब्लेसिंग क्या होगी? 21वीं आयत में, नहीं 20वीं आयत में, और वो इस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे, उस वक्त कॉन्स्यूमेशन होगी द किंगडम ऑफ गॉड की। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस्सु की पहली आमद से खुदा की बादशाही शुरू हो गई, लेकिन कहां है वो खुदा की बादशाही? इट इज इनसाइड द बिलीवर्स, है ना। अभी वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन क्या होगा जब यस्सु की दूसरी आमद होगी तो फिर वो मुकम्मल तौर पर खुदा की बादशाही हो जाएगी। तो तीसरी ब्लेसिंग क्या है? रिपेंटेंस की और यस्सु तक आने की, कि फिर खुदा यस्सु को दोबारा भेजेगा। सो जीसस वुड कम बैक। एक दो आयात देखें हम, यसाया, आइज़ाया चैप्टर 11 एंड वर्स 6।
यानी वो जो बातें कर रहा है वो कोई नई बातें नहीं है, यहूदियों को ये सारी बातें पता है। ही इज कोटिंग द ओल्ड टेस्टामेंट ऑल थ्रू। ठीक है, वर्स 6, 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। सॉरी मैं गलत जगह जी। क्या है? पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बबर बैल की तरह भूसा खाएगा। और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया वो इफाई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर जरर पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंत के इरफान से मामूर होगी। क्या हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम था when all the animals were vegetarians? नो, कोई ऐसा टाइम था? बाग़ अदन, यस एग्जैक्टली। और मैं हमेशा कहता हूं वो खुराक जो थी ना किंगडम ऑफ गॉड की, वो वेजिटेरियन थी, याद रख लें। तो गोश्तखोर जो है they will have a bad time in the kingdom of God. Right? उस वक्त क्या था? खुदा ने कहा ये फल, ये सब्जियां, ये खाओ, है ना? और जानवर भी थे, and they lived in perfect harmony. कोई दरिंदा नहीं था, कोई दूसरों को फाड़ खाने वाला जानवर नहीं था। Now what happens जब हम किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं तो पहले हमारे अंदर सुकून आ जाता है ना, रिफ्रेशिंग टाइम, राइट? वो जो हम दूसरों को पहले फाड़ खाने के लिए दौड़ते थे, वो अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, फिर एग्जैक्टली यही वही चीज, यही आप 35वां बाब पढ़ेंगे यशायाह का, वहां पर भी आपको यही बातें पढ़ने को मिलेंगी। कंप्लीट हार्मनी, और उससे ज्यादा रिफ्रेशिंग और क्या चीज हो सकती है ना? कि ना कोई प्रेडिटर हो, ना कोई प्रे हो, है ना? ना कोई फाड़ खाने वाला हो, ना कोई वो जो बेचारा फाड़ खाया जाता। तो ये प्रॉमिसेस हैं, है ना? नजात के, यीशु मसीह के पास दोबारा आने के क्या है? पहली बात क्या कही थी कि गुनाह मिटाए जाएंगे, ताजगी के दिन आएंगे, यीशु दोबारा आएगा। फिर आगे वो कहता है जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीजें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया। तो पौलुस रसूल भी यही बात करता है ना, सब कुछ जब आखिर हो जाएगी तो फिर यीशु की आमद होगी, ठीक है? और उस वक्त तमाम इख्तियार उसके हवाले कर दिया जाएगा। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त और नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि सैमुएल से लेकर पिछले जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। राइट? अब क्या है ये कंट्रोवर्शियल आयत? कौन सी? ड्यूटरोनॉमी 18:15 एंड 18:18। ड्यूटरोनॉमी 18:15 एंड 18:18। क्या कहा था मूसा ने? मूसा जा रहा है
राइट? मूसा जा रहा है, इज गोइंग टू डाई, ही नोज दैट ही कैन नॉट गो इन टू द प्रॉमिस्ड लैंड. लोग गमज़दा हैं. क्या कह रहे हैं? अकेला नहीं छोड़ेगा खुदा तुम्हें, तुम्हारे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, और जब वो आए तो तुम उसकी सुनना. है ना? ये कहा मूसा ने. अब वो हमारे जो कजन्स हैं वो इस आयत को अपनी तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं. राइट? वो दे से दैट इट वाज सेड अबाउट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. है ना? लेकिन पतरस ने बिल्कुल उस पे मोहर लगा दी कि ये बात किसके बारे में की गई थी? खुदामंद यीशु मसीह के बारे में. और अगर इसको दूसरी एंगल से देखूं मैं, तो क्या हुआ? कौन आया मूसा के बाद? कौन आया मूसा के बाद? यशवा, जोशवा. राइट? एंड जोशवा इज द जूइश नेम फॉर जीसस. ठीक है? तो ये मूसा ने क्या कहा? अकेला नहीं छोड़ेगा तुम्हें. ठीक है? वो मैं तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, और जब वो आ जाए तो उसकी सुनना. तो इमीडिएट जो उसकी फुलफिलमेंट थी प्रोफेसी की, वो किसकी सूरत में हो गई? यशवा की सूरत में. और जो लेटर फुलफिलमेंट थी वो किसकी सूरत में हो गई? यस्सु की. What did Joshua do? यशवा ने क्या किया? उसने अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में वो लेकर गया. एंड दैट्स व्हाट, ये जो रिफ्रेशिंग डेज की बात हो रही है, जीसस इज गोइंग टू टेक अस इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड. ठीक है? He is much more than Joshua, of course. यशवा से बहुत बड़ा है. वो काम जो मूसा और यशवा ने मिलकर किया वो अकेला यीशु करता. वो हमें गुनाह की गुलामी में से भी निकालता है और प्रॉमिस लैंड में भी लेकर जाता. इसकी अच्छा, हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. 2 दफा आसमान से आवाज आई, एक यीशु के बैप्टिज्म पर और दूसरा उसके ट्रांसफिगरेशन पे, जब उसकी सूरत बदल. और जब सूरत बदल गई, क्या कहा? ऊपर से जो आवाज आई उसने क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो. मूसा ने क्या कहा था? उसकी सुनना. अब गॉड इज सेइंग ही इज द सेम, अब सुनो इसकी. राइट? So it's the fulfillment of the prophecy. He is my beloved son, listen to him. और मूसा ने क्या कहा था? When he comes, you have to listen to him. उसकी सुनना. तो देखें किस तरह से कलाम के साथ फिर जाकर जुड़ता. खुदा तस्दीक कर रहा है, ये वही है जिसके बारे में मूसा ने कहा था. इसकी सुनना. हाँ, it's a good example, very good example. या तो क्या होगा? यीशु आएगा दोबारा. और चौथा बेनिफिट क्या होगा? तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा. ये पूरी स्टडी है ओल्ड टेस्टामेंट की, इतने से सरमन. वो पता नहीं कहां से चीजें मिला जुला के रख रहा है. तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे. रिमेंबर पैदाइश 12:3, और दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे. तो वो अहद पूरा हो रहा है. तो देयर इज फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिसेस.
associated with believing in Jesus. اور پھر پانچویں برکت کیا ہے؟ لاسٹ ورس، خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. ٹھیک ہے، تو بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. تو ایک تو وعدے پورے ہو رہے ہیں، دوسرا تمہیں کیا کیا جا رہا ہے؟ عدالت سے بچایا جا رہا ہے. رائٹ. So there are promises. اور میں نے کیا کہا تھا؟ رسولوں کے پاس کیا تھا پریچ کرنے کے لیے؟ پرانا عہد نامہ تھا. اور they put it to such a good use، ہے نا، وہ بالکل وہاں سے موتی نکال کر لا کر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو پیٹرن وہی ہے اس کی پریچنگ کا. پہلے وہ واقعے کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کی وجہ، پھر وہ لوگوں کو پر الزام لگاتا ہے، ان میں احساس گناہ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے there is a way out. اور وہ وے آؤٹ کیا ہے؟ خدا کا فضل. اور اگر آ گئے اس راستے پر تو پھر اس کی برکات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ برکات کیا ہیں کہ سارے جو وعدے ہیں، promises of God will be fulfilled. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی چوتھے باب میں بھی چلے گی. اب ذرا اونچے لیول پر سردار کائن کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ ڈسکشن شروع ہونے جا رہی ہے. تو وی ول سی دیٹ نیکسٹ ٹائم. ایسا لگ رہا ہے بس ہم کنٹینیو چل ہی رہے، اتنا گیپ آیا پتہ نہیں چل رہا. چلیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. خداوند کا شکر ہے، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.